Hello everyone, so today we'll be starting with our part B, that is subject specific skills, and here we'll be starting with unit 1, digital documentation. So before proceeding with this chapter, I would like to introduce you about the OpenOffice package which we are going to use in all these chapters. So first of all, you should know what is the difference between Microsoft Word, or we can say Microsoft Office, and OpenOffice. Okay, so variety of word processors are available for us, like Microsoft Word, OpenOffice, Star Office, etc. Okay, and some web-based word processors are also there, like Google Docs, okay, Microsoft OneDrive, Office 365 Word, etc. So what is the benefit of using OpenOffice? Okay, so first of all, we'll compare the benefits of OpenOffice with the Microsoft Office. So MS Office, in MS Office, basically what we have to pay. Okay, we have to buy the license of MS Office and then we can use its tools. But in OpenOffice, we are getting the same features, even more features we are getting, but we don't have to pay even a single penny for this software. Okay, and to work on this software, it's really very easy as compared to the other softwares. So first question is how to download OpenOffice. So if you want to download OpenOffice, if you want to practice with these videos, with my videos, then you can download this OpenOffice from this link, that is www.openoffice.org. okay, so first of all, your first step is what? Just download this software. Okay, and our OpenOffice, the one property of OpenOffice is it is a free and open source software. FOSS, free and open source software. So what is the meaning of this open source? Okay, first of all, you all should know the definition of open source software. So the softwares which are freely available to us, okay, we don't have to pay for those softwares, as well as we can access the code as well of those softwares, and we can manipulate the code and can sell those softwares with our name. So that kind of softwares are called as the open source software. Okay, so softwares which are freely downloaded and can one make changes in its codes and creates their own software, they are considered as the open source software. Now next is what? Apache OpenOffice package. Okay, so like we have MS package, in MS Office package, what we have MS Word, MS Spreadsheets, MS PowerPoint. Okay, so these are the tools that are present in our MS Office. Okay, similarly we have some tools that are present in our OpenOffice also. So the first tool is OpenOffice Writer. Okay, so basically बच्चों OpenOffice Writer is about what? When you want to prepare a documentation, when you want to prepare a report, जब आपको कुछ report, documentation and इस टाइप का कुछ भी काम करना है, then we can go with OpenOffice Writer, and its extension is what? .odt. okay, ODT stands for Open Document Text. Similarly, for spreadsheets, we have OpenOffice Kelsey in OpenOffice. Okay, so जो हमारा OpenOffice का पैकेज है which was launched by Apache organization, okay, उसमें हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? हमारे पास है राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस, बेस, ड्रो एंड मैथ. सो फर्स्ट जो है राइटर, जब आपको कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, लाइक वी डू इन MS वर्ड, उस केस में हम OpenOffice राइटर यूज़ करेंगे, और इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या रहता है? .odt. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ राइटर और कैल्सी और इम्प्रेस, किसी का भी आपको पूछा जा सकता है. सो राइटर का होता है .odt. फॉर कैल्सी इज़ वॉट? जब जैसे कि आप MS ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट्स यूज़ करते हैं फॉर सम कैलकुलेशन पर्पस, ओके, एंड फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस एक्सेट्रा. सो इन दैट केस OpenOffice के अंदर स्प्रेडशीट की जगह हमारा होता है कैल्सी. फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट MS ऑफिस की OpenOffice की सेम रहती है, बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में डिफरेंस है, एंड दूसरा इनके टूल्स के नाम में डिफरेंस है. सो MS वर्ड के प्लेस पे यहाँ पे है MS राइटर, MS एक्सेल और स्प्रेडशीट के प्लेस पे OpenOffice में रहता है OpenOffice कैल्सी, MS प्रेजेंटेशन जो रहता है उसके प्लेस पे OpenOffice में रहेगा आपका OpenOffice इम्प्रेस,
विद एक्सटेंशन .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओके, एंड डेटाबेस के लिए ओपन ऑफिस में रहता है ओपन ऑफिस बेस। ओके, इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .odb, बी फॉर बेस। ओके, लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हैं .odb, ओपन डॉक्यूमेंट बेस। फिर नेक्स्ट रहता है आपका ओपन ऑफिस ड्रॉ। सो ओपन ऑफिस ड्रॉ इज़ basically for graphics purpose. Then open office math, this is basically for mathematical functions, equation editor and all. जब हम कुछ हाई स्टैंडर्ड इक्वेशंस वगैरह पे काम करते हैं मैथमेटिक्स में, तब हम ओपन ऑफिस मैथ का यूज़ करते हैं। और जब हमें सिंपली मार्क्स कोई परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एवरेज फंक्शन एंड ऑल सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जब हम काम करते हैं तब हम कैलसी का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आपका ओपन ऑफिस पैकेज का। तो जो आपका यूनिट 1 है, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को भी हम डिटेल में करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस होगी ये पूरा राइटर कंप्लीट होने के बाद तब हम स्प्रेडशीट स्टार्ट कर लेंगे। सो ओपन ऑफिस राइटर बेसिकली द सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन स्पेसिफिकली फॉर टेक्स्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, कि जब हमें कोई टेक्स्ट के अंदर मैनिपुलेशन करना होता है, जब कोई रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का काम है, सिंपली एक ही वर्ड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको उसी पे फोकस करना है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना, या आपको कोई रिपोर्ट तैयार करना, या डॉक्यूमेंटेशन का काम है जिसमें आपको कोई कैरेक्टर के ऊपर एडिटिंग करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ सर्चिंग करनी है, आपको टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। तो ऐसे टाइप के जो भी हम काम करते हैं वो सारा हम यूज़ करते हैं उसके लिए ओपन ऑफिस राइटर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन ऑफिस को आपको स्टार्ट कैसे करना है, एंड देन उसके वेरियस जो फंक्शनैलिटीज़ है उसको हम डिटेल में देखेंगे। सो वी हैव 2 methods टू स्टार्ट आर ओपन ऑफिस राइटर। फर्स्ट मेथड इज़ व्हाट, स्टार्ट विंडोज़ बटन, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाके आपको ओपन ऑफिस पे। तो दोनों ही मेथड्स हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट ओपन ऑफिस। ओके, कि हमें ओपन ऑफिस को स्टार्ट कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको लिंक बताया था दैट इज़ www.openoffice.org। उस लिंक पे जाके आपको जो है अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है एंड देन उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से ओपन ऑफिस का एक आइकन यहाँ पे दिखाई देगा, शॉर्टकट आइकन। ओके, और अगर यहाँ पे नहीं मिलता है आपको शॉर्टकट आइकन अपने डेस्कटॉप के ऊपर, देन आप लोग अपने यहाँ विंडोज़ या स्टार्ट बटन पे जाकर भी जो है ओपन ऑफिस टाइप कर सकते हैं। मैं विंडोज़ 8 यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं ओपन ऑफिस सर्च करूँगी, मुझे जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, और अगर आप जो है विंडोज़ 10 या फिर 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को स्टार्ट बटन दिखेगा। स्टार्ट बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो सिमिलरली जैसे हम MS पेंट को ओपन करते हैं, आपको प्रोग्राम्स में जाके ओपन ऑफिस में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना रहेगा। ओके, तो जनरली शॉर्टकट आइकन बन जाता है, तो आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे सो आपका इस तरीके से राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो भी काम करना है, ये हमारा जो है ओपन ऑफिस का राइटर विंडो है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं कि यहाँ पे किस बार को क्या बोला जाता है, जैसे कि MS वर्ड के अंदर होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर रेड कलर का आपको बार दिखाई दे रहा है, दिस इज़ आर टाइटल बार। टाइटल बार क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है हमारे फाइल का नाम डिस्प्ले होता है। सो हम openoffice.org राइटर फाइल के अंदर हैं, ठीक है, और हमारी फाइल का नाम क्या है अभी यहाँ पर अनटाइटल1, बिकॉज अभी तक हमने हमारी फाइल का कोई नेम नहीं रखा है, अभी जस्ट हमने क्रिएट करी है। सो इसका नाम अभी अनटाइटल रहेगा जब तक कि हम कुछ नया नाम इसको नहीं दे दें। ओके, सेकेंड यहाँ पे जो रहता है फाइल एडिट व्यू, आपको जो बार दिख रहा है, दिस इज़ आर मेन्यू बार। ये सारे हमारे मेन्यूज़ हैं, लाइक फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, तो यहाँ पे सारे हमारे मेन्यूज़ रहेंगे। सो इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। थर्ड आपका रहता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसको हम स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस हमारे कैलसी के अंदर, इम्प्रेस के अंदर, बेस के अंदर सभी में सेम रहेंगे, क्योंकि सभी में हम न्यू फाइल भी क्रिएट करते हैं, ओपन भी करते हैं, सेव भी करते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडू रीडू, ये सारी चीज़ें सेम रहती है सारे ही टूल्स के अंदर। ओपन ऑफिस की जितनी भी टूल्स है, राइटर, कैलसी, स्प्रेडशीट्स जो भी है, उन सभी के अंदर सेम टू सेम रहता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। दैट मीन्स एक स्टैंडर्ड टूल है जो सभी में यूज़ होगा। फिर इसके जस्ट नीचे हमारा रहता है फॉर्मेटिंग टूल बार। सो फॉर्मेटिंग टूल बार नाम से पता चल रहा है जिसमें हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स होंगे, जैसे कि हमें इसका
फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना, अलाइनमेंट सेट करना है, कुछ भी बैकग्राउंड सेट करना है। सो इस तरीके से जो भी आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम करना है वो हमारे यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर रहेगा। ओके, सो ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार है। उसके बाद ये हमारा रहता है रूलर, दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल रूलर, यहाँ पे जो है हमारा वर्टिकल रूलर, एंड दिस इज़ आवर स्क्रॉल बार। ओके, ये हमारा स्क्रॉल बार रहता है ऊपर और नीचे जाने के लिए। ये हमारा नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, आप जिस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास तो एक ही, हमने कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो एक ही पेज है। ओके, सो आप स्क्रॉल करते हैं तो आप सिंपली जो है पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे डायरेक्टली जंप करना है, इस पूरे पेज को नहीं देखना है, तो आप ये नेक्स्ट पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको उसके जस्ट ऊपर वाले पेज पे जाना है तो आप प्रीवियस पेज पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये आपका स्टेटस बार रहेगा जहाँ पे पेजेस का स्टेटस रहेगा कि आपके टोटल कितने पेज है और उनमें से आप कौन से पेज के ऊपर हो। सो ये हमारा बेसिकली राइटर विंडो है जिसका हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। ओके, फर्स्ट टॉपिक हुआ गेटिंग स्टार्टेड, ओपन ऑफिस स्टार्ट कैसे करना है। सेकंड टॉपिक हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू आवर राइटर विंडो। ओके, नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से जैसा मैं बता रही हूँ वैसा का वैसा लिखा हुआ है, तो आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट जो आता है थर्ड, दैट इज़ हमें अब फाइल यहाँ पे क्रिएट करना सीखना है। कि सपोज़ करिए आपको कोई नई फाइल, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ भी यहाँ पे टाइप किया हो, अब आपको मन कर रहा है कि मैं एक दूसरी फाइल बनाऊँ, उसमें मैं कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट बनाऊँ या दूसरा कुछ टाइप करूँ, तो नया क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, हमारे पास 3 तरीके हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू क्रिएट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू क्रिएट अ न्यू फाइल। हमें जब न्यू फाइल बनाना है, सो वी हैव 3 वेज। ओके, हमारा पहला तरीका क्या रहेगा, आपको पहला तरीका रहेगा मेन्यू बार। सो फर्स्ट में हमारा रहता है मेन्यू बार। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारी सेम टू सेम चीज़ें रिपीट होने वाली, तो हम फटाफट यहीं से देख लेंगे। सेकेंड तरीका हमारा होता है शॉर्टकट की, और थर्ड तरीका हमारा होता है स्टैंडर्ड। मैं भी इसको ऐसे ही लर्न करती हूँ, इससे हमको बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती है, तो आप भी इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, या आपको एग्जिस्टिंग फाइल जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है वो ओपन करनी है, या आपको कोई फाइल सेव करनी है, कुछ भी इनमें से काम करना हो, आपको कहाँ पे जाना है, आपको इन तीनों काम के लिए फाइल मेन्यू पे जाना है। तो फाइल मेन्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, आपको नई फाइल बनानी है, या फिर आपको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, या आपको फाइल क्लोज करनी है, सेव करनी है, सेव एज करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो ये सारी ऑप्शंस हमको फाइल मेन्यू के अंदर मिलेंगे। इनको हम आगे डिटेल में थोड़ा देखेंगे। अभी हम बात करते हैं न्यू के लिए, ठीक है। सो न्यू फाइल बनाने के लिए फर्स्ट तरीका है मेन्यू बार, सेकंड तरीका है शॉर्टकट की, एंड थर्ड तरीका है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, सो मेन्यू बार मैंने भी आपको बताया था, ये हमारा मेन्यू बार होता है। तो आपको सपोज़ कोई नई फाइल बनानी है तो आप फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आपकी नई फाइल खुल गई अनटाइटल 2 के नाम से, क्योंकि इसका भी आपने कोई नाम नहीं दिया। फिर आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है आपका न्यू फाइल बनाने का, शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है आपका, देखिए आप इस पर ले जाएंगे माउस तो आपको आ जाएगा Ctrl+N, N इज़ फॉर न्यू। ओके, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। सो Ctrl+N हमारा रहता है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ कर रही हूँ Ctrl+N, तो भी देखिए हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो गई। ओके, थर्ड तरीका क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। सो स्टैंडर्ड टूल बार बच्चों हमारा कौन सा, अभी मैंने जस्ट बताया था, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ओके, सो इस पर आपको यहाँ पे जाके ये आपकी न्यू फाइल बनाने का डायरेक्ट आइकन होता है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी बना सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। सो न्यू फाइल बनाने के हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मेन्यू बार में जाके, शॉर्टकट की यूज़ करके, स्टैंडर्ड टूल बार यूज़ करके। तो एग्जाम के लिए याद तो आपको तीनों रखने पड़ेंगे, बट इट्स योर चॉइस। अगर आपको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। आपने जैसे कि कोई फाइल बना रखी है उसको ओपन करना है, जैसे मैंने इसमें 1-2 फाइल्स बना रखी है, मैं वही आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, अब हमें कोई जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है वो मुझे खोल के देखनी है इसी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी देखो बच्चों तीनों सेम तरीके, मेन्यू बार है, दूसरा शॉर्टकट की है, तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार रहेगा, ठीक है। मेन्यू बार वही आपको फाइल में जाना है, और आपको अब क्या करना है, न्यू फाइल तो नहीं बनानी, अब हमें क्या करना है, ओपन करना है एग्जिस्टिंग फाइल, तो हम ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो ये देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका हमारा क्या है शॉर्टकट की, तो ओपन ओ फॉर ओपन, तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+ओपन। ओके, ओपन के लिए हमने क्या यूज़ करना है, कैपिटल O। कैपिटल स्मॉल से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी मतलब डायरेक्टली आपको O दबाना है कंट्रोल के साथ में। ओके, सो कंट्रोल के साथ में हम O दबाएंगे
तो भी देखिए हमारी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। तो वही स्टैंडर्ड टूल बार ये रहा, और इसमें ये न्यू फाइल के लिए, ये आपका ओपन के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक तीनों तरीकों में डायलॉग बॉक्स तो देखो तीनों में ओपन हो रहा है, ठीक है। फिर हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। सो अगर आपको आता है क्वेश्चन की ओपन करने के लिए क्या स्टेप्स है, तो फर्स्ट हमें फाइल मेन्यू में जाना है, फिर हमें ओपन पर क्लिक करना है, या फिर हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+O, या फिर हम स्टैंडर्ड टूल बार में जाके इस येलो वाले आइकन पे, ओपन के आइकन पे क्लिक करेंगे। तो तीनों ही चीज़ें करने से हमारे पास क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो मैं शॉर्टकट की से वापस से ओपन कर लेती हूँ। ओके, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद ये जो इस तरीके से बॉक्सेस ओपन होते हैं, इनको हम डायलॉग बॉक्सेस बोलते हैं। ओके, सो ये हमारा ओपन के लिए ओपन हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ओपन डायलॉग बॉक्स। ओके, सो ओपन डायलॉग बॉक्स में आप जाके यहाँ पे अपने जो है फाइल का नाम डाल सकते हैं जो भी आपको ओपन करनी है। नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखी हुई है वो आपको दिख जाएगी। अगर आपको पता है कि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे रखी है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके फाइल को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको लगता है डाउनलोड्स के अंदर, तो आप डाउनलोड्स के अंदर चेक कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप डेस्कटॉप और सब में जाके सर्च भी कर सकते हो अपनी फ़ाइल का नाम, ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो तो आपकी फ़ाइल जो है आपको मिल जाएगी। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास कुछ P1 P2 P3 P4 ये फाइल्स रखी हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी राइटर फाइल है तो आप ऑल फाइल्स में जाके यहाँ पे एक्सटेंशन .odt सेट कर दीजिए। .odt का हमें मतलब पता है, .odt किसके लिए होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन हमने डिस्कस किया था राइटर के लिए। ओके, तो इससे हमारी सारी राइटर फाइल्स ही ओपन रहेगी, उसके अलावा हमारी और कोई भी फाइल्स हमें ओपन होकर नहीं मिलेगी। तो हमारी सारी राइटर फाइल्स इस तरीके से होती है, सारी हमारी राइटर फाइल्स जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सपोज़ P4 ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरी P4 नाम की एक फ़ाइल है जो ओपन हो गई। तो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, डायलॉग बॉक्स में जाके अपनी फ़ाइल को सर्च करके, और सर्च कैसे करना है आपने देख लिया, डेस्कटॉप या जहाँ भी रखी है उसमें क्लिक करके अपनी फ़ाइल का नाम देख के और उस पर डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो फाइल है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ सेव करना। अगर हमें फाइल सेव करनी, जैसे इसका नाम क्या आ रहा है, P4.odt आ रहा है, और जो हमने अभी इस फाइल खोली थी इसका नाम देखो अनटाइटल्ड आ रहा है, हमने कोई नाम नहीं रखा है। ओके, तो जब हमें अपनी फ़ाइल को सेव करना होता है तो हम सेव करने का ऑप्शन पहले P4.odt के अंदर ही देख लेते हैं। सो सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पे जो है ये पहले सेव का बटन देख लेते हैं। हम सेव करने के लिए भी हमारे पास सेम तीनों तरीके होते हैं। देखिए, जो अभी ओपन करने के लिए चाहिए, जो न्यू के लिए चाहिए, वही सेम तरीके हमारे पास होते हैं सेव करने के लिए। सो टू सेव अ फाइल, अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है, सो अगेन वी हैव 3 वेज। मेन्यू बार में जाके सेव पे क्लिक करो, चाहे शॉर्टकट की यूज़ करो, चाहे स्टैंडर्ड टूल बार यूज़ करो, सेम तरीका। मेन्यू बार में आप जाएंगे फाइल बटन पे, फाइल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर आप अपनी फ़ाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, है ना, फर्स्ट टाइम सेव करने का मतलब है कि आपने अभी तक अपनी फ़ाइल का कोई नाम नहीं रखा है, तब आप चाहे सेव करो चाहे सेव एज़ करो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा जिसमें अपनी फ़ाइल के लिए आपको नाम पूछेगा। नाम आप डिसाइड कर लोगे, उसके बाद सेव करने पे बार बार आपको नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ आपकी फ़ाइल जो है सिंपली बार बार सेव हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी तक एक भी नाम इसमें सेव नहीं किया था, इसलिए हमारे पास ये बॉक्स आया है। तो मैं इसके अंदर नाम डाल रही हूँ VWE कुछ भी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वाले प्लेस पे जाके सेव हो रहा है, हमने इसको कर दिया सेव। ओके, अब मेरी फ़ाइल का नाम देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, v.odt, ये मेरी फ़ाइल का नाम यहाँ पे सेट हो गया। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करती हूँ, जैसे मैं शॉर्टकट की का नाम लिख देती हूँ, सेव करने के लिए शॉर्टकट की हमारी यूज़ होती है Ctrl+S। ओके, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, अब मुझे फ़ाइल सेव करनी, क्योंकि मैंने कुछ नई चीज़ यहाँ पे टाइप की है। तो जब जब आप कुछ नया इसके अंदर ऐड करते रहते हो तब तक आपको फ़ाइल अपनी सेव करनी है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो जो नई चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करी है वो शो नहीं होगी जब आप इस फाइल को ओपन करोगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए फाइल में जाके आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। मेन्यू बार यूज़ करते हो तो सेकंड तरीका, आप शॉर्टकट की अगर यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में S दबाना है, तब भी हमारा सेव हो जाएगा। और तीसरा तरीका है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार में सेव का बटन आपका ये वाला होता है, ये आपका डिसेबल होता है जब आपका कोई भी सेव, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि मेरी फ़ाइल सेव्ड है या नहीं।
जैसे कि अभी हमने सेव कर ली थी Ctrl+S दबा के, तो ये डिसेबल हो गया है क्योंकि ऑलरेडी हमारी फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अगर मैं यहाँ कोई छोटा सा चेंज कर, सपोज मैंने फुल स्टॉप लगाया तो मैंने कुछ नया ऐड किया ना, तो देखो ये इनेबल हो गया है, यानी कि अभी मुझे फाइल को सेव करना पड़ेगा, मेरा फाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगी मेरे डॉट के साथ में वापस से फाइल सेव हो गई है। ओके, अब फिर से जो है ये डिसेबल हो गया। अब मैं और कुछ ऐड करूँगी तो ये इनेबल होगा वापस से सेव कराने के लिए। तो सेव का ये रहता है, 3 तरीके हैं। जब भी हम कुछ नया ऐड करते हैं तो Ctrl+S से सेव कर सकते हैं, मेन्यू बार में जाके ऐड कर सेव कर सकते हैं, और तीसरा हम स्टैंडर्ड टूल बार में जाके इस सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो हमारी फाइल जो है सेव हो जाएगी। ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन आता है टू सेव अ फाइल सेव तो करनी है लेकिन विद डिफरेंट, आपको जो है फाइल का डिफरेंट नेम चेंज करना है, या फिर आपको फाइल का एक्सटेंशन दूसरा रखना है, या फिर आपको जो है डेस्टिनेशन जो है फाइल का वो चेंज करना है। तो अगर आपको फ़ाइल सेव तो करनी है लेकिन साथ में ये कंडीशंस लगाइए, दूसरा नाम रखना है या एक्सटेंशन चेंज करना है या डेस्टिनेशन आपको चेंज करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव की बजाय सेव एज करना पड़ेगा। पहले हम समझते हैं डिफरेंट नेम का मतलब, आपको सपोज v.odt अच्छा नहीं लग रहा, अब आपको इसका नाम रखना है अस, तो जब आपको फाइल का नाम चेंज करना, अगर आप Ctrl+S करोगे तो सिर्फ चेंजेस सेव हो रहे, फाइल जो है वो सेव नहीं होगी, आपका फाइल का नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो चेंजेस कर रहे हो वो सेव होंगे। तो फाइल का नाम चेंज करने को जब आपको ज़रूरत लगती है तो हम सेव की बजाय क्या करेंगे, मेन्यू बार में जाएंगे। अब सेव एज़ के लिए हमारे पास सिर्फ 2 तरीके होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार नहीं होता। अभी हमने देखा था सब में स्टैंडर्ड टूल बार पर भी आइकन था, लेकिन सेव एज़ के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर हमारा आइकन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट हम मेन्यू बार में जाएंगे, मेन्यू बार में जाके हमें क्या करना है, सेव एज़ पे क्लिक करना है। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर हमारी फाइल का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग ये अस, तो अब मेरी फाइल का नाम क्या हो जाएगा, अस। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि आपको एक्सटेंशन चेंज करना है। पहले तो हम देखते हैं कि एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है। जो लास्ट में .odt लगा है, राइटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .odt होता है, हमने डिस्कस किया था। तो अगर इसको एक्सटेंशन को आपको चेंज करना है, सपोज़ आपको इसको MS वर्ड की फ़ाइल बनाना है या फिर PDF फाइल बनाना है या HTML फाइल बनाना है, कुछ भी इसका एक्सटेंशन आपको चेंज करना है, तो एक्सटेंशन भी आप सेम स्टेप से करोगे, फाइल में जाके सेव एज करोगे। फाइल का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आप नया फाइल का नाम रखोगे, एक्सटेंशन चेंज करना है तो आप सेव एज टाइप वाले फील्ड में आओगे और यहाँ से आपको जो भी एक्सटेंशन चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने ले लिया .doc। ठीक है, तो अभी डॉक फाइल बन के सेव हो जाएगा। तो जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। और तीसरा होता है हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डेस्टिनेशन, आपको फाइल का डेस्टिनेशन चेंज करना है। तो डेस्टिनेशन मतलब उसका प्लेस, लोकेशन, तो आप डेस्टिनेशन यहाँ से जैसे दिस पीसी में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, डाउनलोड्स में, म्यूज़िक में, पिक्चर्स में, जहाँ भी आपको डाउनलोड मतलब सेव करना है और जिस भी फोल्डर में करना है उसके अंदर आप जाके इसको सिंपली क्या कर सकते हो, फाइल को जो है सेव कर सकते हो। ओके, सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने जस्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही रखा है, अस दे दिया फाइल का नाम, और अब हम इसको कर देते हैं सेव। तो देखिए मेरा फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ से वी से क्या हो गया है, अस। ओके, तो इस तरीके से हमारे फाइल का नाम जो है चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया Ctrl+सेव, और सेव जो है सिंपली टू चेंज the changes, to save the changes which we are making in our current document. Okay, and save as, when we are using save as when we want to change our file name, okay, its location और its extension, तब हम यूज़ करते हैं save as। और save as का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, सिर्फ save का होता है, save as का होता है आपका Ctrl+Shift+S। ओके, सॉरी, Ctrl+Shift+S, ये आपका save as का हाँ जो है शॉर्टकट की रहेगा। सो नोट्स पे और देखते हैं कि हमने जो जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली देखी उनको एक बार थेरेटिकली भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग अपने जो नोट्स हैं वहाँ पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे हमने अभी जस्ट प्रैक्टिकली डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड हाउ टू सेव दोज फाइल्स। ओके, सो सेम टू सेम चीज़ें जो हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, सारे जो तरीके, जो मेथड्स है न्यू फाइल बनाने के लिए या सेव करने के लिए, वही चीज़ें यहाँ नोट्स के अंदर जो है मेंशन है। आपकी नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे मेरे वेबसाइट के ऊपर, यू कैन चेक। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट के जो स्टेप्स है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स भी नोट्स में देख लेते हैं। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, सेविंग अ फाइल विद डिफरेंट फॉर्मेट एंड इट्स शॉर्टकट कीज। ओके, जो हमने डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक था आपका ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट कीज एंड
दोनों मेथड्स, ओके, स्टैंडर्ड टूल बार से यूज़ करके चाहे फाइल मेन्यू में जाके। अभी जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आते हैं दैट इज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट एंड एग्जिट राइटर। ओके, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, साथ में हम एक चीज़ और भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो नोट में लिखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अबाउट होम की एंड एंड की। ओके, इनको भी हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। सो आ गए हैं फिर से हम अपनी राइटर विंडो में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं अपने कर्सर को लेके जा रही हूँ, यहाँ पे 2 राइटर फाइल्स ओपन है। वन इज ऑफ p1.odt एंड सेकेंड इज p3.odt। ओके, सो जब आपको सपोज जो एग्जिस्टिंग फाइल है जिसमें आप काम कर रहे हैं, मैंने ये 2 फाइल्स यहाँ पे मेरे स्टेटस बार के अंदर है, ओके सॉरी टास्क बार पे, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल p1.odt को ओपन करके मेरे सामने रखा है। एक टाइम पे एक ही फाइल हमारे सामने डिस्प्ले होगी, ओके, और दूसरी फाइल हमारी यहाँ पे ओपन है बट यहाँ पर है। ओके, सो अगर मुझे फाइल ही क्लोज करना है, सपोज मुझे p1.odt क्लोज करना है, तो मैं या तो सिंपली यहाँ से क्लोज बटन पे क्लोज कर सकती हूँ जैसे हम सिंपली करते हैं, या फिर हम फाइल में जाके क्या कर सकते हैं, क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। ये रहा आपका क्लोज। ओके, और इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी होता है दैट इज Ctrl+W। ओके, Ctrl+W। तो इन तीनों ही तरीके से आप ये फाइल को क्लोज कर सकते हो। तो ये सपोज जैसे कि मैंने फाइल पे जाके क्लोज किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो p1.odt थी वही जो है सिर्फ डिलीट हुई है, सॉरी वही जो है मेरी अभी क्लोज हुई है। बाकी जो मेरी p3.odt थी वो अभी भी ओपन है। ओके, अभी मैं अगर एग्जिट करती हूँ तो हम 2 फाइल्स एक बार और खोल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सपोज मैंने p3.odt वापस से ओपन करी है, ओके, और एक फाइल हम और ओपन कर लेते हैं, लाइक p4 वाली मैंने ओपन कर ली है। सो यहाँ पे आप देखिए मैंने कितनी फाइल्स ओपन करी, यहाँ पे p4.odt एंड p3.odt, मेरी 2 फाइल्स ओपन है। ओके, सो इन दोनों, अगर मैं यहाँ पे जाके अब p4.odt पे क्लोज की बजाय अगर मैं एग्जिट करती हूँ, सो एग्जिट करने पे क्या होगा, आप ये देखिए मेरी सारी ही फाइल्स यहाँ से क्लोज हो चुकी है। सो यही डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, यही डिफरेंस होता है हमारा क्लोजिंग एंड एग्जिट के अंदर। क्लोज में आप जिस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करेंगे, जो जिस फाइल पे आप हो वही फाइल क्लोज होगी, एंड एग्जिट करने पे आपकी राइटर के अंदर जितनी भी फाइल्स ओपन है वो सारी की सारी फाइल्स क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट कीज़ है, टू क्लोज अ फाइल द शॉर्टकट की इज़ Ctrl+W। मैं यहाँ पे लिख लूँगी, ओके, आप भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, Ctrl+W। एंड टू एग्जिट अ फाइल, पूरे राइटर को एग्जिट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Q। Q इज़ फॉर क्विट। ओके, उसके अलावा 2 चीज़ें हो रही है यहाँ पे, होम की एंड एंड की। सो होम की एंड एंड की का भी हम यूज़ देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। देखिए मेरा जो कर्सर है, सपोज ये 4 जहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को ले लिया है। अगर हम सिंपली एंड की अगर हम सिंपली होम की प्रेस करते हैं, तो जिस लाइन पे हम, जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे हैं, जैसे 4 पे R पे हैं हम, तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है, हमारा कर्सर इस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा। और अगर हम एंड पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड में END करके एंड एक बटन होता है, एंड पे क्लिक करते हो तो ये जो कर्सर जिस लाइन पे है उस लाइन के एंड में आपका कर्सर चला जाएगा। तो सपोज़ मुझे कभी यहाँ आना है तो हम एक तो माउस से भी आ सकते हैं, और कभी हम अगर कीबोर्ड से आना चाहें तो हमें एक एक लाइन करके आना पड़ेगा, ऐसे टैप करके एरो की से। अगर मैं सिंपली फटाफट वहाँ पहुँचना है देन वी कैन सिंपली यूज़ एंड की। जैसे मैंने एंड प्रेस किया तो देखिए हम कहाँ पे आ गए हैं, बिना माउस को यूज़ करे बिल्कुल लाइन के एंड में। और अगर मैं होम पे प्रेस कर रही हूँ तो इसी लाइन के हम स्टार्टिंग में मेरा कर्सर जाके ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे सिस्टम पे। ओके, और अगर हम कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करते हैं, सो कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करने से क्या होगा, ये जो मेरा कर्सर है डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ में एंड को प्रेस करने से डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। सो कंट्रोल के साथ में मैंने होम प्रेस किया है। ओके, देखिए मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके ब्लिंक कर रहा है। ओके, एंड कंट्रोल के साथ में मैं अगर एंड की प्रेस करती हूँ तो ये बिल्कुल लास्ट में आके जो है मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। सो इस तरीके से अगर हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है देन वी कैन यूज़ Ctrl+N की, स्टार्टिंग में जाना है देन वी कैन यूज़ Ctrl+Home की, और एक पर्टिकुलर लाइन के स्टार्टिंग में जाना है देन वी कैन यूज़ सिंपली उस लाइन पे जाके कहीं भी होम की प्रेस करना है, और लाइन के एंड में जाना है देन वी कैन यूज़ सिंपली एंड की। ओके क्लास, तो ये हमारे बेसिक्स जो थे होम की, एंड की, एंड हाउ सेविंग फाइल और सारा, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। आफ्टर दिस नोट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। जब आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना हो
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करनी होती है, सो एडिटिंग के लिए सबसे पहले आपको जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे, पैराग्राफ पे या पेज पे जहाँ भी आपको कहीं एडिटिंग करनी है, वो पर्टिकुलर चीज़ हमें पहले सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो उनको हम सेलेक्ट कैसे करें उसके ऊपर पहले हम डिस्कशन करते हैं। सो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सेंटेंस, पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट। ओके, आप लोग माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो पहले हम माउस का देखते हैं एंड देन हम कीबोर्ड का चेक करते हैं। माउस से अगर सिलेक्शन करना है, सो अगर हम मुझे प्रोग्राम्स वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड को मुझे सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया, सिमिलरली मुझे इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। तो आपको माउस का क्या करना है कि माउस का जो है ये कर्सर, इसको लेके जाना है आपको यहाँ पे। देखिए मेरा कर्सर ऑलरेडी यहाँ ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ जाके आपको अगर सिर्फ कर्सर को प्लेस करना है, जैसे मुझे इस कर्सर को यहाँ से हटा के पी के यहाँ पे रखना है, सो मुझे सिर्फ वन क्लिक करना है। सो वन क्लिक से हमारा कर्सर वहाँ पहुँचेगा। अगर हम दो बार क्लिक करेंगे तो जिस पर्टिकुलर वर्ड पे हमारा कर्सर है वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको डबल बार क्लिक करती हूँ, 1 2, तो देखिए मेरा पूरा वर्ड सेलेक्ट हो गया है। यही अगर मैं तीन बार क्लिक करूँगी तो जिस लाइन पे है मेरा कर्सर वो पूरा एक स्टेटमेंट जो है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेंटेंस देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर है, फिर ये टी यहाँ से स्टार्ट होकर मेरा नेक्स्ट फुल स्टॉप कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे। तो जब मुझे पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो हमें 3 बार कहीं भी उस सेंटेंस के बीच में जाके क्लिक करना है। तो मैं जैसे यहाँ कहीं भी आके 3 बार क्लिक करती हूँ, 1 2 3, तो मेरा ये सेंटेंस इस फुल स्टॉप से लेके इस फुल स्टॉप तक सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये पूरा एक पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 4 टाइम्स क्लिक करना है। ओके, सो 1 2 3 4, सो 4 क्लिक्स करने पे मैंने से 4 क्लिक्स किए तो मेरा पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो माउस को यूज़ करके हम बहुत ही मतलब स्पीड से कोई भी वर्ड, लेटर सिलेक्शन कर सकते हैं। सो अभी एक हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। टू प्लेस अ कर्सर, सिंगल क्लिक। ओके, टू सेलेक्ट अ वर्ड, डबल क्लिक। टू सेलेक्ट अ सेंटेंस, ओके, ट्रिपल क्लिक, 1 2 3। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, 4 क्लिक्स, 1 2 3 4। ओके, एंड टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, देन विल यूज़ कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल के साथ में हमें ए प्रेस करना है, सो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे माउस से सेलेक्ट करने के तरीके। एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए तो आपको कीबोर्ड का यूज़ करना है, कंट्रोल प्लस ए करके। ओके, फिर कीबोर्ड से सिलेक्शन होता है हमारा शिफ्ट की के साथ। सपोज मुझे सिर्फ ये वाला वर्ड सेलेक्ट करना है, FU तो माउस से तो हम डबल क्लिक से हो जाता सेलेक्ट मेरा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट कर रही होती तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड की शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, और राइट हैंड साइड मुझे सिलेक्शन करना है, क्योंकि FU राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड जो है एरो की को प्रेस करते रहेंगे, राइट एरो की को। जब मुझे लेफ्ट साइड वापस अनसेलेक्ट करना है तो लेफ्ट वाली एरो की को हम प्रेस करेंगे तो अनसेलेक्ट भी हो जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा। अगर मुझे ऊपर भी सेलेक्ट करना है, ऊपर तक ले जाना है इसको, तो अपर की भी साथ में सेलेक्ट करते रहेंगे। तो जितना हमने राइट किया है और फिर आप गए उतना पार्ट हमारा सेलेक्ट होता रहेगा। वापस से मुझे नीचे आना है तो हम एरो की नीचे वाला जो है वो प्रेस करेंगे तो हम नीचे की साइड सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से शिफ्ट के साथ में चारों एरो कीज़ का यूज़ करके वी कैन सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और माउस में हम सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 क्लिक्स को यूज़ करके हम पर्टिकुलर वर्ड, लेटर, सेंटेंस और इन सबको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है, और सिलेक्शन हम लोगों ने सीख लिया ओके बाय यूजिंग द माउस एंड बाय यूजिंग द कीबोर्ड। अब हम एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो एडिट करने में सबसे पहली चीज़ जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज़ इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन। सो ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील। आप अपना माउस से कर्सर ले जाके एक एंटर प्रेस करोगे तो आपकी ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। बहुत बेसिक सी चीज़ है। फिर डिलीटिंग अ टेक्स्ट, अगर आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है, ठीक है, कुछ वर्ड है, कोई लेटर है, अगर आपको डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए ये सारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। ओके, तो आपके अभी सिलेबस में है तो हमें पढ़ना भी है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, माउस से अपने कर्सर को लेके जाएंगे। ओके, ये सारी जो चीज़ें मैंने नोट्स में लिख रखी है आप रीड कर लेना। ओके, सो देखो कर्सर मैंने क्लस्टर क्या रखा। सपोज मुझे क्लस्टर वर्ड पूरा डिलीट करना है। सो पहला तरीका तो क्या है, हम बैक स्पेस यूज़ करके 1 बाय 1 ऐसे डिलीट कर सकते हैं, है ना। 1 1 लेटर हम डिलीट को भी यूज़ करके जो है डिलीट कर सकते हैं।
सो दो बटन्स कीबोर्ड के आप यूज़ करते हैं डिलीशन के लिए, बैक स्पेस एंड डिलीट बटन। ओके, बैक स्पेस से आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लेटर्स है वो डिलीट होते हैं एंड डिलीट से आपके राइट हैंड साइड वाले लेटर्स जो हैं वो डिलीट होते हैं। तो अभी मैं डिलीट बटन दबा रही हूँ, देखिए राइट हैंड साइड वाले मेरे डिलीट हो गए। अब मैं बैक स्पेस दबा रही हूँ तो देखिए बैक स्पेस से मेरे लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिलीट हो जाएंगे। सपोज करिए मुझे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पूरा डिलीट करना है, तो पैराग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जिसे हमें डिलीट करना है। सिलेक्शन के लिए भी हमने सीखा था पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट करना है, 4 क्लिक्स, 1 2 3 4। तो 4 क्लिक से मेरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। हम क्या करेंगे, डिलीट बटन जो है कीबोर्ड का उसको दबा देंगे। डिलीशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज अंडू एंड रीडू कमांड। जैसा कि भी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जैसे इसको डिलीट किया था और वापस से मैंने इसको एक शॉर्टकट की से वापस से ये आ गया है ना, हमने वापस इस जो पर्टिकुलर पैराग्राफ इसको वापस लेके आ गए। या फिर जो मैंने अभी यहाँ पे कुछ लेटर्स डिलीट किए थे कंप्यूटर और कुछ लिखा हुआ था बैक स्पेस एंड डिलीट बटन का यूज़ देखने के लिए, वो हमें वापस चाहिए। जो हमने चेंजेस कर लिए हैं वो हमें अनडन करने हैं, यानी उन चीज़ों को वापस से हमें लेके आना है जो हमने अभी प्रीवियस चेंजेस किए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अंडू बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो अंडू बटन भी आपकी 3 जगह होते हैं, 3 तरीके होते हैं अंडू करने के लिए। फर्स्ट वे इज़ व्हाट, आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे जाना है और ये देखिए ये जो इधर वाला एरो होता है आपके इस पे लिखा भी हुआ है, ये अंडू के लिए होता है और ये होता है आपका रीडू के लिए। ओके, अंडू यानी इसका जस्ट प्रीवियस वाला चेंज और रीडू मतलब कि हमने जो जस्ट इससे पहले वापस सेम चेंज हमको रिपीट करना है। जैसे कि देखिए मैं अंडू करती हूँ तो मेरा कंप्यूटर वर्ड आ गया, अब मैं रीडू करूँगी तो कंप्यूटर वर्ड मेरा फिर से हट जाएगा, है ना। तो हमने जो चेंजेस किए थे वो वापस लाने हैं हमें, तो हम अंडू करेंगे। और ये मुझे लगता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको हटाना है, तो वापस उसका रिवर्स एक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, रीडू करेंगे। तो इस तरीके से अंडू एंड रीडू कर सकते हैं हम यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से। दूसरा तरीका होता है हम एडिट बटन पे जाएंगे और यहाँ से हम जो है डायरेक्टली यहाँ पे देखिए अंडू एंड रीडू के बटन से आप यहाँ से भी अंडू एंड रीडू कर सकते हैं। ओके, तीसरा तरीका है आप कंट्रोल के साथ में जेड, ओके, ये अंडू के लिए होता है और कंट्रोल के साथ में वाई, दिस इज फॉर रीडू। देखिए देखो जेड मैंने किया तो मेरा TER आया और ये मुझे वापस से हटाना है तो मैं कंट्रोल प्लस वाई कर रही हूँ रीडू। ओके, तो वापस से ये हट जाएगा। तो इस तरीके से हम अंडू एंड रीडू की यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसका डेफिनेशंस क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमें करना है। साथ में इसकी मैंने शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ मेंशन करके रखी, कंट्रोल प्लस जेड इज़ फॉर अंडू एंड कंट्रोल प्लस वाई इज़ फॉर रीडू। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा दैट इज़ कॉपिंग और मूविंग टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट को कॉपी करना है या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करवाना है अपने पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को, कैरेक्टर को या सेट ऑफ वर्ड्स को या पूरे सेंटेंस को, तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो उसको भी हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई भी एडिटिंग का काम करना है तो मैंने आपको बोला सिलेक्शन इज़ नेसेसरी, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको बताना पड़ेगा आप किस टेक्स्ट को मूव करवाना चाह रहे हो। सपोज करो कि मुझे इस कंप्यूटर जो वर्ड है इसको यहाँ से हटा के मुझे यहाँ पे लिखना है यूज़र्स के बाद। ओके, मुझे इसको हटाना है यहाँ से और इसको कहाँ पे मूव करवाना है, यहाँ से हटा के मुझे यूज़र्स के बाद लिखना है, यहाँ पे मूव कराना है। तो एक तरीका तो है कि मैं इसको पूरा डिलीट करूँ यहाँ से, फिर यहाँ आके मैं फिर से टाइप करूँ, तो ये दिस इज जस्ट द वेस्टिंग ऑफ टाइम। उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसी कंटेंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट है कि आपको जब यहाँ से हटा के यहाँ लेके आना है इसको, तो आप इसको पहले कंप्यूटर वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप जो है स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेन्यू बार का यूज़ कर सकते हैं। सेम जो टूल्स जो सिलेक्शन के लिए हम काम करते हैं वो 3 चीज़ें ही यहाँ पे हमेशा रहती है, मेन्यू बार का यूज़ करो या स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़ करो या फिर शॉर्टकट की का यूज़ करो। तो देखिए मेन्यू बार पे आपको आपने क्या करना है, ऐसे कट करके आपको यहाँ पे रखना है, यानी यहाँ पेस्ट करना है। तो आपने यहाँ पे इस वर्ड को सेलेक्ट किया, अब आप कट करिए स्टैंडर्ड टूल बार से। देखिए आप यहाँ पे उसको लेके जाएंगे माउस को तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कट का। ओके, ये रहा कट लिखा हुआ है। सो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से कट हो गया, यानी इससे हट गया है और अब मुझे यहाँ लाना है इसको। तो यहाँ लाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए पेस्ट लिखा हुआ है, ये पेस्ट के लिए होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा आइकन यहाँ पे क्या हो गया है, पेस्ट हो गया है। दूसरा तरीका मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, इस चेंज को हम हटा रहे हैं, वापस से यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कंट्रोल Z अंडू एंड रीडू के लिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका अप्लाई कर रही हूँ, स्टैंडर्ड टूल बार ना यूज़ करके अगर आप मेन्यू बार यूज़ करना चाहते हैं तो मेन्यू बार के लिए भी आप इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना है, कट पर क्लिक करना है। ओके, सेकेंड तरीका।
तो यहाँ पे भी देखो कट का सेम ऑप्शन मिल गया विद सेम आइकन, कट पे क्लिक किया, यहाँ से कट हो गया है। और यहाँ पे अपना कर्सर ले जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको पेस्ट। तो पेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, फिर से एडिट के अंदर जाएंगे और आपको किस पे क्लिक करना है, पेस्ट ऑप्शन पे। तो ये देखिए कंप्यूटर यहाँ पे पेस्ट हो गया हमारा। ओके, और तीसरा तरीका भी हम यूज़ कर लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है आपका, शॉर्टकट की। तो कट करने का शॉर्टकट की देखिए लिखा हुआ आएगा यहाँ पे Ctrl+X, ठीक है। तो Ctrl+X से आप पहले कट करेंगे, Ctrl+X, ये कट हो गया। और पेस्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है दैट इज़ Ctrl+V। तो कंट्रोल के साथ में आप जब V दबाएंगे, जबकि मैं इस पर लेके जाती हूँ, देखिए Ctrl+V, तो ये आपका रहता है पेस्ट के लिए शॉर्टकट की। तो मैंने Ctrl+V किया, जैसे मैं एक बार और करती हूँ तो कंप्यूटर वापस रिपीट हो जाएगा। तो जितनी बार आप पेस्ट करना चाहते हैं उतनी बार Ctrl+V करेंगे तो आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब सपोज करिए कि आपको जो ये वर्ड है वो यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है, उसको मूव नहीं कराना, यहाँ से हटा के यहाँ नहीं लगाना है, आपको वो वर्ड यहाँ भी चाहिए और ये वर्ड आपको यहाँ भी चाहिए, दोनों ही प्लेस पे चाहिए। तो उस टाइम पे हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ओके, जब वहाँ से हटा के, किसी प्लेस से हटा के दूसरी प्लेस पे हमें लाना है, देन विल डू कट एंड पेस्ट। ओके, और अगर हमें सेम यहाँ भी रखना है और इसको हमें यहाँ कॉपी करवाना है तो उस टाइम पे हम यूज़ रखेंगे कॉपी एंड पेस्ट। ओके, तो कॉपी एंड पेस्ट के लिए भी आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, फिर देखिए आप लेके जाइए कहीं आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए ये कॉपी का ऑप्शन है आपका। सो कॉपी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने कर्सर को लाके फिर पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए स्टैंडर्ड टूल बार से। तो आपको देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया आपका, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सिमिलरली आप जो है सेम कॉपी एंड पेस्ट जो है स्टैंडर्ड टूल बार की बजाय मेन्यू बार से कर सकते हैं। सेम एडिट पे जाइए, कॉपी करिए यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कैरेक्टर को, फिर यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए। तो एडिट में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, मैंने शॉर्टकट की यूज़ कर लिया था अभी, ठीक है। तीसरा तरीका, वापस आप इसको सेलेक्ट करिए, मैं Ctrl+C, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+C, Ctrl+C किया, कॉपी हो गया और यहाँ आके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो शॉर्टकट कीज़ बच्चों आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी। C फॉर कॉपी, Ctrl+C इज कॉपी। पेस्ट के लिए Ctrl+P नहीं होता है, Ctrl+V होता है। Ctrl+P जो है वो होता है प्रिंट के लिए, P इज़ फॉर प्रिंट। ओके, सो अगर आपको पेस्ट करना है तो आप बहुत बच्चे गलती करते हैं, Ctrl+P समझ लेते हैं, बट Ctrl+P मीन्स प्रिंट करना एंड Ctrl+V इज़ फॉर पेस्ट। और कट करने के लिए Ctrl+C नहीं होता है, Ctrl+C इज़ फॉर कॉपी। कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+X। ओके, यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिख रही होगी। सो ये हमारे हो गए, हमको जब टेक्स्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करवाना है, कट करके पेस्ट करना है, तो हमारे तीनों तरीके। और जब हमें कोई कंटेंट एज इट इज़ कॉपी कराना है तब हमारे उस टाइम के तीनों तरीके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे की जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन राइट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। और